Assalamu alaikum beta. In this video lecture I will deliver the lecture on fungal infections of skin. Okay, so before I start this lecture I must tell you beta, this lecture is completely from your textbook Davidson, so you just keep that book with you and just follow this lecture and listen to the lecture. It's going to be a happy life. Okay, so happy life learning medicine. Have a look at the causative agents which produce fungal infections of skin. These are the fungi. Okay, top notch. Dermatophytes, Malassezia fungal species and Candidial species. Okay, और dermatophytes में भी कुछ ज़बरदस्त फंगल स्पीशीज़ जैसे कि ट्राइकोफाइटन जो स्किन का इन्फेक्शन कराता है। देखिए, ट्राइकोफाइटन हो, माइक्रोस्पोरम हो और एपिडर्मोफाइटन हो, स्किन के इन्फेक्शन तो ये तीनों कराते हैं। लेकिन अब जैसे ट्राइकोफाइटन है, दिस फंगस एक्चुअली प्रोड्यूसेस इन्फेक्शन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स एज वेल। माइक्रोस्पोरम स्किन के साथ हेयर्स का इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। और जो एपिडर्मोफाइटन है, इट इन्फेक्ट्स स्किन और उसके साथ ये हेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करता बल्कि नेल्स का इन्फेक्शन करा सकता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटन एक ऐसी स्पीशी है फंगस की डर्मेटोफाइट के अंदर जो आती है, वो तीनों को इन्वॉल्व करती है बेटा, स्किन के साथ विद नेल्स एंड हेयर्स एज वेल। ओके, एंड ऑल दीज थ्री fungal species in the category of dermatophytes, either it is trichophyton, microsporum or epidermophyton, all these can produce skin infection as I mentioned. Okay, trichophyton is causing skin infection, microsporum is causing skin infection, epidermophyton is also affecting skin. So all they produce a very specific skin infection called tinea. Okay, and depending upon the site, tinea is of different types. Okay, it can be tinea capitis if the fungal infection is of scalp, and it is called tinea barbi if it is the fungal infection of beard area. Okay, mouse neck area. Okay, tinea fasciae, it is the फंगल इन्फेक्शन ऑफ फेस। ओके बेटा, जब मैं फंगल इन्फेक्शन बोलूँ तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, डर्मेटोफाइट की बात कर रहा हूँ। इट मे बी ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। ओके, या टीनिया कॉर्पोरिस इज द डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ fungal infection of body. Okay, rest of the body. And after tinea corporis is tinea cruris, that is the dermatophyte infection of groin region, that is your inguinal region, right? And after that is tinea menum, it is the typical dermatophyte infection of hands. And tinea ongoium जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं मोस्ट कॉमनली, इट इज़ द फंगल, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो इट इज़ द डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। ठीक है, जब मैं डर्मेटोफाइट बोलूँ तो आप समझ जाएंगे इन तीन की बात हो रही है, वेरी ऑब्वियसली। ठीक है, टीनिया पेडिस इज द डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ फीट. And what is tinea cognito? It is not a direct infection, but you know what beta, what happens, let's suppose let's suppose I develop tinea corporis. If I develop tinea corporis today and I keep on applying steroids over the lesion of tinea corporis for a long period of time, then you know beta what happens, the appearance of that lesion completely becomes different and completely it gets changed. Okay, and this steroid modified tinea is called tinea incognito. अगर आपको समझ आ गया वेरी गुड, नहीं तो let me tell you the same thing in different and easy language beta. Again, if I develop tinea corporis on my skin, okay, and if I apply steroids over a long period of time over the lesion of tinea corporis on skin, then you know beta what will happen, उस लेयन की अपीयरेंस चेंज होने लगेगी। ठीक है, उसकी थिकनिंग बढ़ जाएगी, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी लेयन की। सो दिस स्टीरॉयड मॉडिफाइड चेंज इन द ऑलरेडी प्रीवियस लेयन इज कॉल्ड टीनिया इनकॉग्निटो, राइट। अच्छा, ये आपने बेटा स्पीशीज़ देख ली। और ये टीनिया, अच्छा, ये जो डर्मेटोफाइट के अंदर स्पीशीज़ आती हैं फंगल स्पीशीज़, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ये टीनिया कराती हैं। ठीक है, और टीनिया की आपने टाइप्स यहाँ देख ली।
ठीक है। अब हम जरा जनरली बात करते हैं कि हम बेटा डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे अगर किसी को कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, टीनिया कैपिटिस, बारबी फेशिया, वॉट एवर, ओके, इवन मेलासीजिया का या कैंडिडियल स्पीशीज़ का। जनरली the way of making diagnosis is mostly what happens in the clinical practice. you know Practitioners don't go towards this way, don't go towards this way for the diagnosis. Then what do? How do they diagnose the disease? Better they actually look at the lesion on the skin of the patient, and they just make the diagnosis on clinical basis. They look at the lesion, they look at the site of the lesion, shape of the lesion, then they are like, okay, this can be tinea corporis. Okay, if let's suppose a patient comes to you with annular ring like lesions, circular worm like lesions on his trunk. Okay, it's a part of body obviously, so it may be tinea corporis. So what I want to tell you is, this is the typical textbook way of making diagnosis of tinea infections or whatever fungal infections. But in clinical practices, people do not go for this. Then how do they diagnose? They diagnose on the clinical basis. What do you mean by clinical basis? They just look at the lesion, they just see the site of the lesion, then they said, okay, it is going to be dash 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 lesion. Okay, now you understand. But obviously we have to obey our textbook, so let's see how can we generally make the diagnosis. So beta, wherever you have fungal infection on your body, सो टेक द सैम्पल फ्रॉम दैट लेयन. अगर स्किन में आप समझ लें फोर आर्म पे है, ट्रंक पे है, तो उस लेयन में से कुछ सैंपल ले लें स्क्रैपिंग करके. अगर स्किन पे है तो स्किन स्क्रैपिंग ले लें. हेयर्स में इन्फेक्शन है फंगस का तो हेयर प्लक करके वो वहाँ से ले लें. और अगर नेल में है तो नेल क्लिपिंग्स जो हैं टुकड़े उसके, वो ले लें सैंपल के तौर पे. और उसको फिर आप या तो उसकी माइक्रोस्कोपी करें या तो उसको KOH वेट माउंट से गुजारें. और फिर इन दोनों के नतीजे में अगर आपको फंगस के हाइफी दिख जाते हैं तो आप कहेंगे हाँ फंगल इन्फेक्शन है. और अगर आपको फंगस के हाइफी ना दिखें तो ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन नहीं है. दिस इज़ द जनरल वे ऑफ मेकिंग डायग्नोसिस. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन. बेटा ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन है तो यू हैव टू गो विथ एंटीफंगल्स. इनिशियली यू हैव टू गिव टू द पेशेंट टॉपिकल एंटीफंगल्स जो स्किन के ऊपर लगा सके या नेल के ऊपर, या टॉपिकली मतलब इट मे बी टर्बिनाफिन और टॉपिकल एजोल्स. ओके, बट इफ द lesion is not responding to topical antifungals, if infection is not resolving, then if let's suppose infection is very much stubborn, disease is very much extensive, and even it is involving, along with skin, it is involving scalp and nails, then what should you do? You should shift yourself from topical antifungals to systemic oral antifungals. Okay, with systemic antifungals, do provide the patient with steroids as well, short course of steroid, not the long course of steroid. क्योंकि long course steroid देने से क्या होता है बेटा, मैंने I just told you कि जो लेयन है उसकी शेप और उसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, टीनिया इनकॉग्निटो हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट कोर्स में स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं. सो फर्स्टली यू हैव टू गिव टू द पेशेंट टॉपिकल एंटीफंगल्स, बट इफ़ द infection is not responding, then if it is very much stubborn, then shift to the systemic antifungals. और उसके साथ आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स भी देंगे, टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ अबाउट द स्पीशीज़, general diagnosis and management of the fungal infections. Now let's talk about these variants of tinea, types of tinea. Let's first start with this type, tinea corporis. It means it will be involving the body. Okay, so tinea corporis, yeah, tinea corporis, you can see my son. It is, by the way, most common in children. It is most common in children, not in adults. एंड इसमें क्या होता है बेटा, इसका कॉजेटिव एजेंट देख लें कौन सा है. इट्स कॉजेटिव एजेंट इज़ माइक्रोस्पोरम कैनिस, जो कि जिसका सोर्स मेनली डॉग्स होते हैं, और दूसरा ट्राइकोफाइटन वेरियोकोसम जिसका सोर्स कैट्स होते हैं. ठीक है, ये देखें, यही तो हैं ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम. ठीक है, इन्हीं से टीनिया हो रहा था. अब देखें जो टीनिया कॉर्पोरिस है
उसका कॉजेटिव एजेंट यही है ना बेटा, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ठीक है। तो बेटा टीनिया कॉर्पोरिस जो है ये तो आपको पता चल गया कि इसको कराने वाला फंगस कौन है, माइक्रोस्पोरम कैनिस एंड ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम। बट नाउ लेट्स सी कि इसमें जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो स्किन पे जो लेयन बनते हैं, हाउ डू दे अपीयर? दे आर एसिमेट्रिकल, सिंगल और मल्टीपल एरिथमेटस एनुलर पैचेस और प्लैक्स। एनुलर मतलब गोल होता है इसका लेयन, ये पैच होता है या प्लैक होता है। इसकी जो एज होती है गोल, वो एज बड़ी वेल डिफाइंड होती है, और जो सेंटर होता है उतना वो एक्टिव नहीं होता, उसमें सेंट्रल क्लियरिंग होती है। मैं आपको लेयन दिखाता हूँ बेटा क्विकली, ये देखें। ओके, यू कैन सी दिस, ओके लेयन, जस्ट अ सेकंड, लेट मी फोकस ऑन टू इट। या यू कैन सी, ओके quickly, yeah. So you can see in this picture beta, Taenia corporis. If I zoom into it, if we just see this lesion, just see this lesion beta, this is Taenia corporis. Can you see, isn't it a patch? It may be a plaque because it is little elevated from the skin, and you can see its borders are very much active. Borders are raised, okay, a little raised, but its center is very much white and very much dull and very much clear. Okay, so this is Taenia corporis. Now if you see same thing here, this is also Taenia corporis. Central इसकी जो border है, इसकी edges बड़ी clear हैं, लेकिन बड़ी edges जो है बड़ी defined हैं, लेकिन center इसका clear है बिल्कुल. Edges are defined, center is clear. Okay, so you see now the same thing again. Yeah. Okay, what did we learn? The lesion is asymmetrical, and the lesion is, it was single or maybe multiple on skin. It may be a patch or plaque, and it was erythematous, annular. Obviously annular means this ring like, goal, circle like. Okay, if I can keep this here even, no issue. Yeah, now you can follow. Okay, this is it. Yeah, can you see the lesion and the nodes both? Yeah, erythematous lesion. Okay, the lesion is erythematous and it is annular, गोल है, और इसकी जो एजेस हैं वो बड़ी वेल डिफाइंड हैं, और सेंटर जो है उसमें क्लियरिंग है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट मैंने बता दिया बेटा। अच्छा, अगर इस टीनिया कॉर्पोरिस के लेयन के ऊपर आप इल एडवाइस्ड यूज़ करते रहेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स बड़े अरसे के लिए, तो फिर क्या होगा, इसकी शेप बहुत ख़राब हो जाएगी और ऐसा डिफाइंड, ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। उससे क्या होगा, उससे मसला ये होगा कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी और इसकी बिल्कुल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, तो फिर आपको डायग्नोसिस बनाने में मुश्किल हो जाएगी ना। सो इल एडवाइज्ड यूज़ ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड से क्या होगा, टीनिया कॉर्पोरिस में उसका टीनिया इनकॉग्निटो बन जाएगा, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेयन की मॉडिफाई हो जाएगी बेटा, और इंक्रीज डिजीज़ एक्सटेंशन, और डिजीज़ वहाँ से फैलती भी जाएगी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस? इसके जैसा लेयन और कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? डिफरेंशियल्स इसके क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहले जहन में क्या आनी चाहिए चीज़, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म बिल्कुल ऐसा ही लेयन बनता है उसका, ठीक है। और न्यूमुलर एक्जिमा, जिसको हम डिस्क्वाइड एक्जिमा कहते हैं, उसमें भी ऐसे गोल लेयन बनते हैं, ठीक है। और सोरियासिस में भी कुछ इस तरीके से, खास करके गटेट सोरियासिस में क्या होता है कि कुछ ऐसे गोल लेयन बनते हैं, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टीनिया कॉर्पोरिस। नाउ लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ टीनिया. Yeah, that is Taenia cruris. Okay, Taenia cruris beta, it is also called jock age, and पीछे हमने जो टीनिया कॉर्पोरिस किया उसका लेयन कहाँ बन रहा था बेटा? टीनिया कॉर्पोरिस पूरी बॉडी पे बन रहा था, लेकिन टीनिया क्रूरिस का कहाँ पे बनता है लेयन? Only on in the groin region, that is inguinal region, and even it can extend from groin to the thigh, okay, a little down. अच्छा, ओके, आपको इसकी साइड तो पता चल गई ना। अच्छा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्राइकोफाइटन रबरम।
ट्राइकोफाइटन रबरम। पीछे भी ट्राइकोफाइटन था कॉर्पोरस में, लेकिन वो ट्राइकोफाइटन रबरम नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसका जल्दी से हम लेयन देखें। ओके, सो this is tinea cruris. You can see beta, okay, this is a good picture to follow. You can see this is penis and scrotum down. This is the inguinal region. You can see the erythematous lesion. Beta, you can see the erythematous lesion. Yeah, this is erythematous, very much itchy plaque. Okay, even if you want to see another picture, you can see this one. It has now spreaded to, extended to thigh. Initially it should be here in the inguinal region. Now it has extended to thigh. These are erythematous plaques. Okay, you want to see one more right there. This is penis, okay, and this is the inguinal region with this erythematous itchy plaque. Right? What are the differential diagnosis of tinea cruris? और कौन सी conditions है जिनमें बिल्कुल ऐसा लेजन देखने को मिल सकता है? उसमें बेटा एक इन्वेजिव सोरियासिस आता है। इन्वेजिव सोरियासिस का मैं पूरा लेक्चर अपलोड करूँगा, और इसके अलावा एरिथ्रेस्मा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये कंडीशन पढ़ाऊँगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर लेजन आपको देखने को मिलेगा। What are the risk factors for jock age, tinea cruris? What people are at risk? If I am going to develop tinea cruris, then what should be the risk factors in myself? It includes increased sweating. It includes मेल जेंडर, मेल्स में ज़्यादा होता है टीनिया क्रूरिस, ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब बेटा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस वाले, HIV वाले, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले, तो उनमें टीनिया क्रूरिस हो सकता है। और उसके अलावा टाइट क्लॉथिंग पहनना, ठीक है, और पुअर हाइजीन। इस इंग्वाइनल रीजन की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। अगर हाइजीन पुअर होगी तो यहाँ पे फंगल ग्रोथ होगी और टीनिया क्रूरिस हो जाएगा, ठीक है। And beta, after tinea cruris is tinea pedis. Tinea pedis is most common fungal infection in adults, by the way. ठीक है, most common fungal infection in children's in children it was tinea corporis. Okay, at number 1 we did. टीनिया पेडिस बेटा, जिसको हम एथलीट फूट भी कहते हैं, इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वही हैं बेटा टीनिया रबरम, मोस्ट कॉमन यही होता है। उसके अलावा टीनिया इंटरडिजिटल, और तीसरे नंबर पे एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोसम। ओके, दीज नाइस लिटिल 3 बेबीज, ट्राइकोफाइटन रबरम द मोस्ट कॉमन बेबी, एंड द ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटल एंड एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोसम। दीज आर द कॉजिटिव एजेंट्स विच कॉज टीनिया पेडिस। आप सोचेंगे सर टीनिया कॉर्पोरिस कहाँ का इन्फेक्शन था? पूरी बॉडी का। टीनिया क्रूरिस कहाँ का इन्फेक्शन था? बेटा इंग्वाइनल रीजन का। टीनिया पेडिस कहाँ का इन्फेक्शन है? ऑब्वियसली इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ foot, okay, as I mentioned on the very first page. Okay, what are the risk factors? That means who develops athlete foot? Warm and humid environment, ज़्यादा स्वेटिंग आना, जैसे आजकल की गर्मियों में है, तो मुमकिन है कि अगर पैरों पे और इंग्वाइनल रीजन में ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो बी केयरफुल, फंगस कैन ग्रो देयर। क्रॉनिक वाटर एक्सपोजर, पैरों का ज़्यादातर पानी में एक्सपोज रहना, एंड क्रॉनिक यूज़ ऑफ इनक्लोज्ड फुटवेयर, बंद चप्पल जो है ज़्यादा पहनना, ठीक है, बड़े वक्त के लिए, और इम्यूनोसप्रेस्ड होना, वो HIV हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टीनिया पेडिस की बेटा 3 टाइप्स होती हैं। आपको ये तो पता चल गया अभी तक कि ये फुट का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, और ये भी आपको पता चल गया कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं। तो क्विकली इसकी बेटा टाइप्स ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप होती है बेटा इसकी interdigital type. It is most common type. Okay, let me show you. Yeah, you can see this beta. If you just focus on this, you see this is what type of tinea pedis? This is interdigital type. It is most common. What is happening in this? This is very much pruritic, very much itchy and erythematous scaling, especially between lateral 3 toes. You can see this is erythematous. Number 1, this is erythematous. That means it is a little reddish. Number 2, it is pruritic. बहुत खारिश होती है इसमें। और तीसरे नंबर पे स्केलिंग। तीनों चीज़ें हैं, वाइट स्केलिंग है, एरिथेमा है, और प्रूराइटिस भी होती है। और ख़ास करके ये लेटरल 3 टोज में बेटा देखने को मिलती है
कौन सी टाइप? इंटर डिजिटल टाइप टीनिया पेडिस की। उसके बाद आती है हाइपर केराटोटिक टाइप। लेट मी शो यू द हाइपर केराटोटिक टाइप बेटा। और उस हाइपर केराटोटिक टाइप में क्या होता है, वो बाय द वे टोस के बीच में नहीं होती, वो सोल पे होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है बोले? सोल पे होती है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है सोल, और थिक होने के साथ साथ स्केलिंग भी होती है। नाउ यू सी हियर बेटा, now you see, can you follow my words? Isn't it very much thick and very much scaly? These are the scales, okay? And how thick the skin is? This is hyperkeratotic type. Number 3 बेटा, it is vesiculobullous type। ठीक है, ये भी टोस के बीच में नहीं होती, ये भी सोल पे होती है। क्या होता है सोल पे? वेजिकल्स और बुल्ला बनते हैं। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन वेजिकल्स एंड बुल्ला, ये तो आपको अब पता होना चाहिए। ओके, स्मॉल वेजिकल्स एंड लार्ज बुल्ला। यू कैन सी दिस मे बी अ बुल्ला, अ लिटिल लार्जर, एंड a smaller one can be the vesicle. Okay, the difference between vesicle and bulla is of beta only size na. This is a little larger. Okay, this is bulla, this is vesicle. So this vesiculobullous eruption on the sole of the foot, this is called what type of tinea pedis? Vesiculobullous type. Okay, and it mostly occurs on the medial side of the foot rather than lateral side. Okay, yeah. So 1 2 3 and number 4 type is beta acute ulcerative type. It is most commonly caused by Trichophytum interdigital type. इसमें क्या होता है बेटा? छोड़ें इसको, आप मुझे बताएं इंटरडिजिटल टाइप में क्या हुआ था। लेटरल 3 टोज में प्रूरिटिक एरिथेमेटस स्केलिंग। हाइपरकेराटोटिक टाइप में क्या हुआ था? सोल पे थिकनिंग और स्केलिंग। वेजिकुलोबुलस इरप्शन में क्या हुआ था? सोल पे वेजिकल्स और बुल्ला बने थे। ठीक है, अच्छा, अब चौथी टाइप जो है वो एक्यूट अल्सरेटिव टाइप है। बेटा इसमें क्या होता है कि जो खास करके आपकी थर्ड और फोर्थ डिजिट है उसमें अल्सरेशंस और इरोजन्स आने लगती हैं। ठीक है, और आप ये देखें, isn't it an ulcerated and erosive area? Okay, and it is also often super infected with the bacterial infection. जाहिर है बेटा, कोई स्किन इतनी इरोजिव और अल्सरेटिव होगी तो इसके ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस है वो तो ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस इज़ बेटा टीनिया पेडिस। आफ्टर टीनिया पेडिस, okay, let me show you, it is tinea capitis. Tinea capitis is also common in children. And now can you tell me, tinea capitis is the tinea infection, fungal infection of what? Scalp. Okay, corporis was the infection of body. And at number 2, what did we do? Cruris, it was the fungal infection of groin. And after cruris, it was tinea. What did we do beta? Do memorize, do recall with me. I don't want you to recap the video. I just want you to revise it with me. Tinea cruris was the fungal infection of groin. And okay, what did we do after that? After tinea cruris, it was tinea pedis, the athlete foot का इन्फेक्शन था फंगस का, और इसमें 4 टाइप्स थी। ठीक है, उसके बाद अगर स्कैल्प का इन्फेक्शन हो तो बेटा स्कैल्प का जो इन्फेक्शन है फंगस का, इसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये 2 तरह के लेजन होते हैं। एक होते हैं जो जिनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, बगैर इन्फ्लेमेशन के होते हैं, और एक जो इन्फ्लेमेशन के साथ होते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी टाइप्स। नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप इंक्लूड ब्लैक डॉट्स एंड ग्रे पैच, and inflammatory types include carrion, favus and diffuse pustular type. In your textbook Davidson, this is written and mentioned, and not such great information given about these types, but still I'll try to cover whatever we can do. Now let's see black dot and gray patch. असल में क्या होता है बेटा, मैं ब्लैक डॉट और ग्रे पैच का थोड़ा डिफरेंस आपको समझाऊं तो ये देखें, अगर ये एक हेयर है, ठीक है, ये स्कैल्प है, ठीक है, ये एक और हेयर है, ठीक है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि वो जो आपका हेयर है, जो हेयर की स्टॉक है, उसके आउटर सरफेस पे हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेटा, या लेट मी टेल यू,
Yeah, so if it is okay, if it is like this, beta, if the fungal infection is on the outside surface, if it is on the outside surface of the hair stalk, and it can be like this, on if it is affecting inside, within the hair shaft, these two can happen, na? Yeah, at number one, it can be like this, outside the hair shaft, and it can be like this within the hair shaft. This is called ectothorax. What is this called, beta? Ectothorax. And this is called endothorax. Okay, fungal infection within the hair shaft is endothorax, and outside the hair shaft is ectothorax. And you know what happens with endothorax? Black dot. एंड व्हाट हैपन्स विथ एक्टोथोरैक्स इज ग्रे पैच. ये क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा. देखें क्या होगा, एंडोथोरैक्स में फंगल इन्फेक्शन इनसाइड है, तो अंदर है ना बेटा हेयर शाफ्ट के. इसकी वजह से क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि ये आपकी स्कैल्प है, तो ये जो पूरी हेयर शाफ्ट है इस इन्फेक्शन की वजह से ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे से टुकड़े ये आपकी हेयर शाफ्ट है. पहले तो ये हेयर शाफ्ट यूँ इतनी लंबी थी ना, अब ये हेयर शाफ्ट छोटी सी रह गई है, ठीक है. मतलब कि इस इन्फेक्शन की वजह से ये ऊपर से टुकड़ा ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से छोटी सी हेयर शाफ्ट रह गई है, ठीक है. तो वो छोटे छोटे जो हेयर शाफ्ट्स होती हैं वो ब्लैक डॉट के फॉर्म में अपीयर होती हैं कुछ इस तरीके से. ये देखें बेटा, कैन यू सी दीज ब्लैक डॉट्स, कैन यू सी दीज ब्लैक डॉट्स, या दीज ब्लैक डॉट. ऐसा लग रहा है कि बाल जो है वो ऊपर से सारे ब्रेक हो गए हैं और नीचे वाला पार्ट की जड़ जो है वो बची हुई है. तो बेटा ये किस में होता है? यस, it happens in a case of endothorax. Now here you see black dot. Infection is within the hair shaft, that is endothorax. और इससे क्या होगा? पैची हेयर लॉस होगा. कंप्लीट नीचे जड़ से हेयर नहीं निकलता, पैची हेयर लॉस होता है, जिसकी ओके. एंड देर आर एक्चुअली ब्रोकन हेयर्स लाइक दिस, ओके, एट द सरफेस ऑफ द हेयर शाफ्ट, नॉट फ्रॉम द रूट ऑफ द हेयर शाफ्ट, ठीक है. तो बेटा मैं अब थोड़ा आसान करूं बातों को. तो अगर फंगल इन्फेक्शन यूं हेयर शाफ्ट के सरफेस पे हो तो वो कहलाता है एक्टोथोरैक्स, और अगर अंदर हो तो उसको एंडोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है. अच्छा, जब अंदर होगा ना इन्फेक्शन बेटा, तो उससे क्या होगा कि जो हेयर शाफ्ट है ये ब्रेक हो जाएगी, हेयर शाफ्ट ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, छोटा सा ये हेयर शाफ्ट रह जाएगा और ये बहुत सारे हेयर शाफ्ट एज अ ब्लैक डॉट नज़र आएंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके. एंड दे गिव नो फ्लोरिसेंस on wood slide, and there is little or no inflammation because they are underlying this category, non-inflammatory category, so there is very little or no inflammation, ठीक है. खास करके जो ब्लैक डॉट कराता है, यानी कि जो एंडोथोरैक्स इन्फेक्शन कराता है, वो होता है बेटा आपका कॉजेटिव एजेंट. कौन होता है? ट्राइकोफाइटन टॉन्सुरेंस, ठीक है. As compared to beta this black dot endothorax, if you see the gray patch, it occurs due to ectothorax. You see beta, this is the hair shaft again, and this is the ectothorax, fungal infection on the surface of the hair shaft. In this case what happens beta, complete hair shaft is lost. Not like it is not breaking at the top, it is not like leaving some small fragments, no, it is completely lost from the base. So beta look, in case of gray patch what happens, infection outside the hair shaft, okay, it is ectothorax, and there is complete hair loss from the base and a complete patch is formed, okay. This is the black dots, okay, but gray patch is going to be little different, just like this. Can you see black dots in this? No, because this is gray patch, this is the gray patch, okay, in which ectothorax has occurred and the hairs are lost from its base, okay. The causative agent of black dot was Trichophytum tonsurans, and in case of gray patch it is going to be two different causative agents, yeah, Microsporum arduini and Microsporum canis. अच्छा, जो Microsporum arduini होता है उसमें बहुत कम इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि हम वैसे ही कहते हैं कि ये ब्लैक डॉट और ग्रे पेच नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में आते हैं. लेकिन अगर हाँ ग्रे पेच, अगर आपका ग्रे पेच माइक्रोस्पोरम कैनिस की वजह से होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन मिलेगी. तो ये बात कहना बिल्कुल ठीक है कि जो आपका ब्लैक डॉट और ग्रे पेच है ये नॉन इन्फ्लामेटरी लेजेंस हैं, ठीक है.
लेकिन ग्रे पेज के अंदर एक एक्सेप्शन है कि ग्रे पेज के अंदर अगर जो इन्फेक्शन है वो माइक्रोस्पोरम कैनिस से हुआ है तो फिर ग्रे पेज इन्फ्लामेटरी होगा, अदरवाइज वो नॉन इन्फ्लामेटरी होगा। ठीक है। सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बेटा टीनिया कैपिटिस, मतलब लयन जिसके साथ मैच करता हो टीनिया कैपिटिस का, तो वह स्कैल्प सोरियासिस होता है। आई विल डिलीवर द कंप्लीट लेक्चर ऑन द मेडिसिन ऑफ सोरियासिस and seborrheic dermatitis and alopecia areata. These are the conditions in which what happens? These are the conditions beta in which what happens? The lion resembles very much to, yeah, resembles very much to your tinea capitis. Okay, and after tinea capitis we have got some other terms to see. Let me show you quickly. Tinea fasciae, it is the fungal infection of skin of face. Okay, face, except mouse tail and beard in males. Okay, अच्छा, अगर मुझे बेटा बियर्ड के रीजन में फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो क्या टीनिया फेशियाए होगा? नहीं, वो होगा टीनिया बार्बी। ठीक है। अच्छा, तो फिर टीनिया फेशियाई किसको कहते हैं? मेल में अगर फेस पे इन्फेक्शन हो फंगस का, बियर्ड और माउस टेक के अलावा किसी भी जगह पे फेस में, तो वो टीनिया फेशियाई कहलाएगा। और ख़वातीन में और छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में, जब स्किन फेस पे इन्फेक्शन हो चिन का और अपर लिप्स पे, तो उसको टीनिया फेशियाई कहेंगे। ठीक है। सो अगेन लेट मी टेल यू द सेम थिंग इन ईजी वर्ड्स। बेटा, इफ़ अ मेल develops a lion fungal infection on the face and this infection is on the beard or mouse tail, is it going to be tinea fasciae? No, it is going to be the beard area wala infection, that is tinea barbi. Okay, if I being an adult male, if I develop the fungal infection on my nose or on my upper cheeks, then it is going to be tinea fasciae. Okay, if a girl develops the fungal infection on the face and it occurs on, let's suppose, upper lips or occurs on chin, it is tinea fasciae, and same is the case in children. Okay, and lastly is the onychomycosis. Onychomycosis is the fungal infection of नेल प्लेट। ठीक है। दो टर्म्स कंफ्यूजिंग होती है, वैसे तो ये होनी नहीं चाहिए। एक होता है ओनिकोलिसिस, एक होता है ओनिकोमाइकोसिस। बेटा ये अगर फ़र्ज़ करें ये नेल बेड है ना, ये नेल बेड है और इस नेल बेड के ऊपर होता है नेल प्लेट। ठीक है, जो नाखून होता है आपका। सो बहुत आसान सा है बेटा। दिस इज़ द नेल बेड, दिस इज़ नेल बेड एंड दिस अपर इज़ द नेल प्लेट. Okay, this upper part is the nail plate and the bed beneath is just nail bed. Okay, as easy as possible. Why to be very much confused? So if this nail plate is separated from this nail bed, it is called onycholysis. The separation of nail plate from nail bed, it is onycholysis. And what is onychomycosis? It is the fungal infection of this nail plate. Okay, let me show you. Why not have a look at a very good picture? Yeah, this is onychomycosis, by the way. Can you see? This is the fungal infection of the nail plate. Can you see? This is this infection. What is happening? This is yellow brown discoloration and there is crumbling, बुरबुरापन नेल का, और उसके अलावा थिकनिंग ऑफ दिस नेल. कितनी चीज़ें हैं बेटा? येलो ब्राउन डिस्कलरेशन, दूसरा थिकनिंग, तीसरा क्रम्बलिंग, और उसके अलावा सबोंगल हाइपरकेराटोसिस, नाखून के नीचे सबोंगल हाइपरकेराटोसिस. व्हाट इज़ हाइपरकेराटोसिस? जो नेल बेड की स्किन है उसमें केराटिन का ज़्यादा बनना. ठीक है. दिस इज़ ओनिकोमाइकोसिस एंड ऑल अबाउट द टीनिया इन्फेक्शंस. सम अदर फंगल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन इंक्लूड लाइक टायरियासिस वर्सिकुलर, इसको हम टीनिया वर्सिकुलर भी कहते हैं बेटा. इट इज़ आल्सो, बाय द वे, हम टीनिया इन्फेक्शंस कर चुके हैं बेटा. टीनिया के बाद कुछ और फंगल इन्फेक्शन ज़रा देख रहे हैं, जिसमें एक टायरियासिस वर्सिकुलर है, एक कैंडिडिया है. तो बेटा टायरियासिस वर्सिकुलर, जिसको हम
No, I hope it is correct. Yeah, this is Tariasis versicolor, and Tariasis versicolor. It is obviously an skin infection of the fungus caused by an yeast जिसका नाम है Melasthesia globosa. It is most common, but Tariasis versicolor can also be caused by Melasthesia furfur as well. Okay, Melasthesia furfur as well, and its incidence is equal in male and female, right? क्या होता है टायरियासिस वर्सिकुलर में बेटा? टायरियासिस वर्सिकुलर में स्किन पे खास करके जो आपके अपर ट्रंक की स्किन है उस पर कुछ इस तरीके के लयन बनते हैं, कुछ मैक्यूल्स बनते हैं जो मेनली हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, ठीक है, और बहुत ही रेयरली वो हाइपर पिगमेंटेड होते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखें, कैन यू सी बेटा दीज हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स? कैन यू सी? फ़ोन का मैंने बहुत बुरा हाल बना दिया है, अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. आई होप यू कैन सी दीज हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स. Yeah, they are occasionally hyperpigmented. Even in this picture you can see every macule is hypopigmented. हाँ, ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ऑब्वियस हो जाते हैं, ठीक है. इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी बेटा? हम क्या करेंगे, यहाँ से स्किन स्क्रैपिंग्स लेंगे थोड़ी सी, और उसको हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पगेथी एंड मीट बॉल हाइफी. फंगस अगर है इसमें तो उसके हाइफी दिखेंगे. फंगस के हाइफी कैसे दिखेंगे? स्पगेथी एंड मीट बॉल लाइक. इसकी भी मेरे पास थोड़ी तफसील है, मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, कैन यू सी बेटा? दीज आर जस्ट या कैन यू सी बेटा? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ स्पगेथी, राइट? एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मीट बॉल. ओके, yeah, this is spaghetti, nice little, and this is meatball. Okay, this is the microscopy of skin scrapings which we took from the lion. Can you see these meatballs? Yeah, nice little meaty balls. And can you see this spaghetti? Yeah, this is it. This is it, beta. This is spaghetti. This is where is the meatball? Okay, this is the meatball. This is spaghetti. You can see these nice little goal meatballs. एंड यू कैन आल्सो सी दीज स्पगेथी. तो बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस आती है जब आप माइक्रोस्कोपी करते हो, स्किन लायन की. ओके, इन केस ऑफ टायरियासिस वर्सिकुलर. ओके, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन टायरियासिस वर्सिकुलर इज़ टू यूज सेलेनियम सल्फाइड, या सेलेनियम सल्फाइड की जगह केटोकोनाजोल शैम्पूज़, और उसके साथ हम ऐड कर देते हैं टॉपिकल और सिस्टेमिक एजोल एंटीफंगल्स, ठीक है. तो या तो आप सिर्फ सेलेनियम सल्फाइड यूज़ करें या फिर केटोकोनाजोल शैम्पूज़ के साथ एजोल एंटीफंगल्स दे दें, ठीक है, टॉपिकल या सिस्टेमिक. ये है बेटा टायरियासिस वर्सिकुलर. उसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो कैंडिडियासिस है. ये तो बेटा सेपरेट एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन फॉर नाउ यू जस्ट सी इट इज़ अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ नॉट ओनली स्किन but of mucosa as well. It is caused by an yeast Candida albicans, and इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे लयन है उसका सैंपल लेके या तो कल्चर करते हैं उसको या तो उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं. ऑब्वियसली इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, सो ट्रीटमेंट शुड बी एंटीफंगल्स, आइदर टॉपिकल और सिस्टेमिक. बाय द वे, कैंडिडा is a separate detailed topic, but as per your textbook you have to obey, right? This is all about beta today's lecture, that is cutaneous fungal infections. Okay, that's all about this. Class dismissed.